Hello students, welcome to the SVS English classes. We are here again to discuss some hard sentences. We are here to discuss the second hard round of direct and indirect speech. In this hard round of direct and indirect speech, we take some miscellaneous, assorted, and mixed sentences. These sentences are mixed up, taken by us to explain. The first sentence is my uncle said, comma inverted commas begin, well Sohan, I shall give you a prize. Full stop inverted commas close. स्टूडेंट्स देखिए इसमें वेल आया हुआ है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में इस प्रकार से वेल आता है तो उसको इनडायरेक्ट बनाते समय हम हटा देते हैं। ठीक है, अब हम इसको बनाते हैं। माई अंकल और ध्यान दीजिए इस वोकेटिव केस भी है। इस वोकेटिव केस को यहां पर ले आएंगे। माई अंकल टोल्ड सोहन दैट आई चेंज होगा अंकल के अनुसार, ही आएगा क्योंकि अंकल भी सिंगुलर नंबर में है और सोहन भी सिंगुलर नंबर में है। दोनों का पर्सन भी सेम है, कोई भी नाउन थर्ड पर्सन में आता है, तो इसलिए हमने आई को चेंज किया है अंकल के अनुसार। तो यहाँ पर अंकल लिख देंगे ताकि हमें ये क्लियर रहे। ही के साथ विल आएगा और विल का हो जाएगा वुड। गिव, यू सेकंड पर्सन का है, चेंज होगा सोहन के अनुसार, हिम। ए प्राइज, यहाँ पर ये यू सेकंड पर्सन चेंज किया हमने सोहन के अनुसार, हिम। यहाँ पर हम इसको ब्रैकेट में सोहन लिख सकते हैं जैसे हमने आपको बताया है। ठीक है स्टूडेंट्स, सेंटेंस नंबर 2, फादर said, comma inverted commas begin, you see, comma, I cannot tolerate such things. Full stop inverted commas close. In these examples, we see using the words by father you see। ठीक है, well you see जैसे वर्ड्स आते हैं तो these are the words being used for formality, but when we change this direct sentence into indirect, the words such as well or you see, we delete them। Father said that, आई फर्स्ट पर्सन का है, चेंज होगा फादर के अनुसार, ही
कैन नॉट को कुड नॉट में चेंज कर देंगे। टॉलरेट सच थिंग्स, फुल स्टॉप। तो इन दो एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम ये जान लेते हैं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में वेल और यूसी जैसे वर्ड्स आते हैं तो इनडायरेक्ट बनाते समय वाइल चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच वी नेवर यूज वेल और यूसी। क्लियर? आई थिंक इट इज क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, number 3, Hari said, comma inverted commas begin, I feel sorry for what I have said. फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमास, क्लोज। अब देखिए इसमें जैसे आई फील सॉरी फॉर व्हाट आई हैव सेड, तो ध्यान देने की बात है जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इस रिपोर्टिंग वर्ब को हम फील में चेंज कर देंगे। फील को हम टेंस के अनुसार चेंज करेंगे, सेकंड फॉर्म लेकर आएंगे। हरी, फील की सेकंड फॉर्म होती है फेल्ट, हरी फेल्ट सॉरी फॉर what. I is the first person, change according to the speaker. It will be he. Have changed into had. What he had said. Full stop. I feel आता है इस प्रकार से सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच के शुरू में, तो सैड को हम फेल्ट में बदल देंगे। ठीक है, यानी कि इसको ऐसे नहीं करेंगे हरी सैड दैट ही फेल्ट सॉरी फॉर व्हाट ही हैड सैड, नहीं, यहाँ पर रिपोर्टिंग ऑफ सैड को फेल्ट में चेंज कर देंगे। एग्जाम्पल्स इसलिए हम एक्सप्लेन करते हैं, डिस्कस करते हैं, बिकॉज the examples tell us how to solve the problems in the exercise. So all of the students should study the examples taught by the teacher as well as explained in the book. The students should study them properly. Example number 4. She said, comma inverted commas begin, I hope my friend will come
today. Full stop, inverted commas, close. Here in this example, we see I hope. Here I feel. Such types of words are not used while changing the direct speech into indirect. In such sentences, reporting verb changes into hoped. We never do like this. She said that she hoped her friend would come that day. No. Here said change into hoped. She hoped that. My change according to the speaker. Her. My is possessive. It will be her according to she, because her is the possessive of pronoun third person she. Friend will change into would. Come today change into that day. Example number 5. Mahendra said, comma inverted commas begin. Sorry, for what I did. ओके हम इस सेंटेंस को देखते हैं तो यहाँ पर सॉरी से पहले आई फील अंडरस्टूड है। जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 3 आपको एक्सप्लेन किया था, उसमें आई फील है, तो यहाँ पर आई फील नहीं है, लेकिन वो आई फील यहाँ पर अंडरस्टूड है। इट विल बी चेंज्ड जस्ट लाइक द सेंटेंस नंबर 3। महेंद्र felt sorry for what? I will change according to the speaker Mahendra. It will be he. Did is in past indefinite tense. It will change into past perfect. It will be had done. Clear? Like this, we have to change all the other sentences given in the exercise. If we study these examples carefully, I hope there will be no problems while changing direct speech into indirect speech. Some more examples like the above. He said to his officer, comma, inverted commas begin, let me go home, full stop, inverted commas close.
he yes, he said to his officer, comma inverted commas begin, let me go home. यदि हम इस सेंटेंस को देखते हैं तो we find request in this sentence. This sentence can be changed into indirect by two methods. First method is formal, as I told you in the previous video. Imperative sentences. Here said to change into requested, because in this sentence he is demanding permission politely. Okay, so said to change into requested. He requested his officer. अब now we put preposition to before let. Let is also a verb. We make an infinitive to let. It becomes infinitive. Me is an object of the first person, will change according to the speaker. It will be according to him, according to he, him object. Go. Go here is bare infinitive. जब लेट आता है तो उसके बाद जब इन्फिनेटिव आता है ऑब्जेक्ट के बाद में तो टू नहीं आता है, तो इसलिए ये फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे रही है, इसको सेकंड नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखना है. होम. ओके, हालांकि इस तरह से हम पहले ही समझा चुके थे, लेकिन इसमें डिफरेंट क्या है, क्योंकि इसमें परमिशन ली जा रही है. ठीक है स्टूडेंट्स, परमिशन है तो हम इसको दूसरे प्रकार से भी बना सकते हैं. कैसे बनेगा देखेंगे. रिपोर्टिंग वर्ब तो रिक्वेस्टेड ही रहेगी. रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर. इसमें हम कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे. ठीक. अब जो इस लेट के बाद में क्या आ रहा है, मी आ रहा है. अब ये समझिए कि लेट को हटा करके हमने जो है यहाँ पर दैट का प्रयोग किया है. ठीक है, और इस मी को सब्जेक्ट आई मानेंगे और ये चेंज होगा स्पीकर ही के अकॉर्डिंग, तो ये होगा ही. अब हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे माइट बी. might be allowed to. अब इसमें लेट मी तो हट गया, ये लेट मी हट चुका है क्योंकि इसमें परमिशन मांगी जा रही है. तो लेट मी को हटा करके हमने यहाँ पर दैट का प्रयोग किया. मी को जो ऑब्जेक्टिव केस में था सब्जेक्टिव केस में ला करके चेंज किया अकॉर्डिंग टू स्पीकर. इट विल बी ही. और इसमें माइट बी अलाउड, जब परमिशन है तो हम लेट मी को हटा करके दैट ही माइट बी अलाउड टू का प्रयोग करेंगे. इतना हमें ध्यान रखना है. ठीक. अब इसके बाद टू के बाद गो. होम. ये हमने इसलिए आपको एक्सप्लेन किया कि इस सेंटेंस को इस प्रकार से बनाया जा सकता है. बट दिस मेथड इज इजियर देन दिस. ओके, you will also feel the same. This method is easier than the second method. So always follow this. Okay? Yes. Example number 7. He said, comma inverted commas begin, let there be no inquiry
into my case, full stop, inverted commas close। जब रिपोर्टेड स्पीच लेट देयर बी से शुरू होती है और उसमें रिक्वेस्ट या एडवाइस होती है, तब हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज करते हैं, अगर रिक्वेस्ट है तो, और एडवाइस है तो एडवाइज्ड में चेंज करते हैं। और उसके बाद लेट देयर को हटा करके, लेट देयर को हटा देंगे और इसको हटा करके क्या करेंगे, कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे और दैट के बाद देयर आ जाएगा और देयर के बाद में शुड। चेंज करते हैं, ही रिक्वेस्टेड दैट। ठीक है, अब हम यहां पर दैट के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के रूप में यहां पर देयर का प्रयोग करेंगे जो लेट के बाद आया हुआ है। तो यहां वैसे देयर ऑब्जेक्ट के रूप में है लेट वर्ब के, यहां पर ये सब्जेक्ट बन जाएगा दैट देयर। अब यहां पर प्रयोग करेंगे हम शुड का, शुड बी। तो सीधी सी बात है, लेट देयर को हटाएंगे और दैट देयर शुड का प्रयोग कर देंगे। यदि इस प्रकार का सेंटेंस आता है तो दैट देयर शुड बी नो इंक्वायरी। इनटू my is the first person in possessive case, it will change according to the speaker, it will be his case। तो इस प्रकार से हमें ध्यान देना है कि सेंटेंस किस प्रकार से स्टार्टिंग हो रहा है विद इन इन्वर्टेड कॉमाज, उसी के अकॉर्डिंग हमें रिपोर्टिंग वर्ब, उसी के अनुसार कंजक्शन, उसी के अनुसार हमें उसको इंडाइरेक्ट बनाना होता है। एग्जाम्पल नंबर 8, इसमें रिक्वेस्ट है, नेक्स्ट सेंटेंस है एडवाइज का। He said, comma or commas begin, let there be no talk about her। इसमें अगर हम पढ़ते हैं, आफ्टर रीडिंग द रिपोर्टेड स्पीच वी फाइंड दैट देयर इज एन एडवाइस इन दिस सेंटेंस, सो द रिपोर्टिंग वर्ब चेंज इनटू एडवाइज्ड। ही एडवाइज्ड दैट, देयर को सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे, देयर और देयर के बाद आएगा शुड बी there should be no talk about her, फुल स्टॉप। सेंटेंस को पढ़ने से ही हमें जानकारी होगी कि हमें उसे किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो सो आई रिपीटेडली एडवाइज ऑल द स्टूडेंट्स टू स्टडी द एग्जाम्पल्स अटेंटिवली। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इस सेंटेंस में रिक्वेस्ट, इसमें एडवाइज है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। The officer said to the clerks,
comma inverted commas begin, let no one late in the last week of March. In the sentence within the inverted commas, we find order. So, here in this sentence, reporting verb said to will change into ordered. The officer ordered the clerks तो यहां पर हम क्या करेंगे, कॉमन इन्वर्टेड कॉमाज को हटाएंगे या फिर ये कहेंगे कि लेट को हटा करके हमने दैट का प्रयोग किया, ठीक है। और लेट के बाद यदि कोई नाउन या प्रोनाउन आता है तो यहां पर क्या आ रहा है, नो वन, ये प्रोनाउन है, तो हम इसे सब्जेक्ट के रूप में लेकर आएंगे, ठीक है। दैट नो वन, ऊपर भी ऐसी किया हमने, ये देखा है एक प्रकार से, ठीक है, यही सेंटेंस है। अब लेट के बाद देयर है, यदि हम ये कहें कि भाई लेट को हटा करके हमने दैट का प्रयोग किया, ठीक है, और दैट के बाद जो लेट के बाद आया हुआ था इसको हमने यहाँ सब्जेक्ट बना दिया और इसके बाद में फिर हमने शुड रखा है, ठीक है। यहाँ भी इसी प्रकार से है, बस इतना डिफरेंस है कि यहाँ पर ऑर्डर है, ठीक है। लेट को हटा करके दैट का प्रयोग किया, जो लेट के बाद आया हुआ है नो वन, इसको हमने सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया, लिखा, और इसके बाद शुड का प्रयोग होगा, कम लेट इन द लास्ट week of March. नेक्स्ट सेंटेंस एग्जाम्पल इसका इसी तरह का, दी, ये चमका नहीं, ध्यान नहीं दिया, द किंग said, comma, inverted commas begin, let the man be set free. The king said, comma inverted commas begin, let the man be set free. अब देखिए इसमें भी लेट आ रहा है, ठीक है, ये भी ऊपर की तरह बनेगा, इसमें भी ऑर्डर है। सो हेयर आवर रिपोर्टिंग वर्ब विल चेंज इनटू ऑर्डर्ड। द किंग है तो ऑर्डर ही करेगा, ऑर्डर्ड दैट। दैट, लेट को हटा करके हमने दैट का प्रयोग किया और लेट के बाद जो नाउन आ रहा है ये, इसको सब्जेक्ट बना देंगे, और इस मैन का अभी सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा, शुड का प्रयोग करेंगे, शुड बी
सेट फ्री। एक बात और ध्यान रखने की है, ये सेंटेंस फॉर्मल तरीके से बन सकता है, लेकिन यहाँ पर ये लेट के बाद नो बना रहा है, यही बन सकता है एक बार को इस तरीके से न बना करके, लेकिन यदि लेट के बाद देयर आ रहा है तो उसको फॉर्मल तरीके से नहीं बना सकते हैं। ये ऐसे भी हो सकता है, द किंग ऑर्डर्ड द मिनिस्टर, ठीक है, टू लेट द मैन बी सेट फ्री, ऐसे भी बनाया जा सकता है। बट वी आर टेकिंग दीज एग्जाम्पल्स second hard round of the direct and indirect speech. So this sentence is a bit hard. Okay, now example number 11. Okay, now that is the end. The rest of the sentences we will discuss in the next video. So I hope all the examples will be clear to you, and I hope to make these sentences clear we should study the examples very carefully, because the examples tell us how to solve the problem in a proper way. So I hope again to solve their problem concerning the grammar, subscribe the channel SVS English Classes so that you may get updates concerning the grammar. Thanks. Have a good day.